कर अग्रे वसते लक्ष्मी करअग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमूले सरस्वती करमध्ये तु गोविन्दम् करमध्ये तु गोविन्दम् प्रातः करदर्शनम् प्रभातदर्शनम् कर अग्रे वसते Lakshmi simply means that your fingertips are the source of your Lakshmi. That means your prosperity, your fingers, you work through your hands. Isn't it? Kar mule tu Saraswatis. But our mool, our base should be that Gyan, that Atma Gyan. That should be our base. We should perform all activities when we perform in the world with that knowledge of self. Okay. Kar madhya tu Govindam. Everything in between what we perform, it's Govindam. Like everything, Govind is always there. That Shrishti, everything that you do, you must have that I'm surrendering it to Ishwar and then doing it, no matter what you do in life, whether it's at your job, whether you take care of your kids, take care of your parents, you're not doing it for yourself. Everything is doing for Ishwar. That should be the bhav. Never take an ownership of an action that you're doing. Because whenever you take an ownership that I am doing it, or it's my child, I'm helping my child, or it's my parents, I'm taking care of my parents. No, you're not. You're just playing a role in this entire universe. So never take that ownership. वो कर्ता भाव नहीं रहना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना. I am the mother, I am the father, I am the employee. No, that's okay. You're working for a bigger thing. So मैंने पहले भी बोला है, पुरुष सूक्तम आता है कि ऋग्वेद में, जिसमें पूरे ब्रह्मांड को एक पुरुष जैसा देखा है कि पूरा bodies. We are like tiny cells of that purush. So everybody is working like we are like maybe specialized like liver cells, lung cells, anything, you know, but they all work for one human being, isn't it? Nobody is big or small. Everybody is playing the role. Everybody is playing their role. And you have to play the role to the best of your ability. Suppose we get some disease in the body. So what happens? The white blood cells take over charge. So similarly, if we get a disease in the society like terrorists or thieves, they're police to take care of it, right? So सब में गोविंद है, इसका मतलब ये नहीं कि चोर को छोड़ दें. पुलिस को भी अपना रोल करना है ना. So everybody has to play the best of their roles. भावना तो वही रहनी चाहिए, सब में ईश्वर है, लेकिन you have to play the role to the best of your ability. मतलब अपना धर्म नहीं छोड़ना है वहाँ पे. That means you have to get up and take action. You don't have to be passive if you see anything going wrong or somebody behaving wrong. You must take action if you're in that capacity. सब में गोविंद देखने का ये मतलब नहीं होता कि जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है. जो होने वाला है वो अच्छा है, जो हुआ वो भी अच्छा है, वो डिफरेंट है. बट यू हैव टू प्ले योर रोल. अगर लिवर सेल्स बोल दे कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कोई कुछ भी खाए उसको वो प्रोसेस नहीं करे तो बॉडी में तो टॉक्सिन्स आ जाएगा ना. सो यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग दैट सब में भगवान देखने का ये मतलब नहीं होता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जिसको जो मर्जी करता रहे. When you're following the path of dharma, following the path of yoga, you must take proper action every moment. You have to be aware. Passivity is not the right approach. You should be active. इसलिए बहुत बार धर्म को ना व्हील से रिप्रेजेंट, धर्म चक्र बोला जाता है. व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है. व्हील सिग्निफाइज मोशन. इट्स ऑलवेज मूविंग. संसार चक्र चलता रहता है हमेशा, है ना. You have to play the role best of your ability. That's all you can do. And always remember, duality is the nature of the physical reality. Heat, cold, दिन रात, अच्छे लोग बुरे लोग हमेशा रहेंगे संसार में. वो कभी बस परसेंटेज वेरी करेगा युग युग में, है ना, बट रहेंगे सब जगह. सो वो चलता ही रहेगा. हमको एक्सेस पे जाना है, मध्य में एक्सेस पे रह के सबको संभाल के चलना है ना. हमको वो अपना एक्सेस नहीं छोड़ना है. हमको अपना एंकर बना के रखना. इट्स ऑलमोस्ट लाइक children play in merry-go-round, but they hold on to something solid. Then they won't enjoy the merry-go-round, right? If they leave, they will fly off. So you have to hold on to that self very steadily. बाकी सब तो परिवर्तनशील ही रहेगा, चेंज होता रहेगा. मन भी वही है, मन में भी डुअलिटी होता ही रहेगा. बट यू आर नॉट योर माइंड. You don't have to flow with your mind. You have to always take your mind in the right direction. It's every moment prayas, you know. Shweta has something to say. Right? Thank you, Archana ji, for that. And thank you so much for hosting us here. Very happy to be here with you all.
I wanted to spend a few minutes talking about maybe picking off where you left off around how everything is so transitory and changing. We all take this form on this earth for a purpose, right? We are all souls that have manifested ourselves here. The purpose of our lives is determined by what we call the four aims, dharma, artha, kama, moksha. So every time we're born, every time we take birth, what we spend our lifetime pursuing is determined by the combination of dharma, artha, kama, moksha. So this is determined at birth. This is something through our Vedic astrology that can be understood as to what the purpose of the soul is. The beauty, however, is Purusharth, which, Archana ji was just saying, how we are the manifestors of what we do. Purusharth is our free will, our ability to change what we decide to pursue. So life after life, as we come onto this planet, if you think about when you were young, you were growing up, you had dreams, you wanted to pursue something, you got a job, then we all got married, we had kids, we spend a lot of our time keeping up our dharmic roles, right? So we spend a lot of time there. You'll see a lot of people who are deep businessmen, CEOs of companies who spend a lot of time thinking about artha. How do we, sustain the financials? There are people you might know in your life who love entertainment, love enjoying. Their goal is to live life to the best. Their goal is kama. And then, of course, there are those of us who have realized in this lifetime that moksha is the ultimate, right? So this combination or concoction of dharma, artha, kama, moksha exists in different ways, in ratios for us. So knowing that we're all moving towards moksha in some shape or form, it becomes an interesting obstacle course with barriers in between. So the barriers that we usually think about when we talk about kama, krodha, lobha, mada, moha, matsarya, like the shadrupus, the six impurities or obstacles, as we say, I think in our lifetime, given our engagement with the world, the journey to moksha is less about esoteric, merging with the one versus figuring out how to cross these different barriers on the obstacle course. So I just want to take a few moments today talking about those obstacles and using our experiences in life to overcome those obstacles. How do we use our current situation in a way to overcome those? When we think about the obstacles, and I'll take the example of raga as in hunger, everything functions at three different levels. And the levels we assign names, the trigunas, tamasic, rajasic, and sattva. Hunger, for example, at a tamasic level could be desperation for money, desperation for something you see someone else having, jealousy. A good indicator, I think, today, because there's the age of Instagram and we're all on Reels, is to understand what type of Reels show up, because the algorithm would essentially throw up the things that you're most interested in. And that gives you an idea of what you seek in the external world. The same thing at a rajasic level could be going up for a promotion, trying to find a role in a company where, maybe you want to establish yourself, you want to start your own business. So it's a different level of hunger, one that's done with a smile versus with tamasic where you're doing it out of frustration at the lowest level. And when you take that another level, sattva is hunger for something else around, hunger for enlightenment, hunger for being on the spiritual path, hunger for having the spiritual experiences. So there's one thing that I would love for everyone to take away is sattva, rajas, tamas usually gets a bad rep in terms of good, bad, and ugly. At least that's how I used to think of it before. But the more I think through how these exist, it exists across the board. Everyone from a completely unevolved human being to someone who's highly evolved has all of these. So attachment to money or pleasure versus attachment to your people or to a cause versus attachment to your Krishna or Hanuman Murti, they're all attachments of some kind. So how do we then become aware of these different obstacles in our lives without being judgmental? And I think a lot of our effort goes into transcending from the tamas to the rajas to the sattva, and at some point going beyond sattva. There are people who pride themselves as being the most spiritual.
that is a form of moha, or attachment, and that is a form of pride that people have. That is still a form of attachment. The minute you are in a black and white zone, so to speak, you are creating some level of attachment. One of the things I'm personally working on is being in the gray zone, allowing my perspective to change, because that is very difficult. As we age, we go through life, it's so hard to change our perspectives. But the more sadhana we do, the more yoga we do, the more practice that we do, our perspectives change. Because to what Archana ji was just saying, the very nature of Prakriti is transition. There is nothing, absolutely nothing. If you look at your whole life start to now, there is nothing that has remained the same except Parabrahman. But we hold on to these things and we create these barriers for ourselves. I think it's important to become aware. So as we're going through our day-to-day activities, interactions with the world, interactions with our family, interactions at jobs, let's think about, where do we get trapped? What are the traps for us? If someone says, oh, you're so amazing, I loved what you said, or I loved what you did, do we have the ability to witness the feeling that we get of pride and joy and say, okay, this, yes, let go of doership, like we just talked about. This is not me, but I'm happy to receive this. And the same thing we receive with pain and suffering, which is a form of grace for us. I think as we go through our yogic sadhana, whatever we're all doing in our lives, I've often find the biggest trap for me personally is the disconnect between the internal journey and the external. So we can do all the yoga and we can do all the sadhana to internally purify and overcome these hurdles and try to get on the obstacle course. But if that is not reflected in our lifestyle, it's not reflected in our relationships, it's not reflected in how we conduct ourselves, you are not crossing the obstacle. Something to think about in terms of the trigunas, to be aware at the end of the day. Today we talked about in class, awareness is the highest form of enlightenment, which is a line that I read recently that is like stuck with me. We talk about so much literature on enlightenment that can be so complex, but at the simplest core of it, it's being aware, knowing who you are. Just the way when we go to a temple, we know our gotras or whatever. It just comes off like, can we have the knowledge of who we are at our fingertips? Pause there. See if anyone has any reflections, If I have to summarize everything from last 6 months or a year, our journey, one thing which has changed and is stuck in my mind, the definition of moksha. We grew up with the definition that we have to achieve to a level where ultimate aim is to merge and no rebirth concept. I don't know how true it is, but it is like, for me, it is becoming more an illusion rather than a practicality of all these concept is basically being happy and doing things whichever give you somewhere the happiness concept. And you rightly said there are different hurdles, okay, and they will keep pulling us, okay. Like the moment we reach home and talk to my daughter or talk to my son, we're always pushing them to achieve something. We're never trying, and we are always looking that, okay, if they will reach to that level, they will be happy. We don't know. Like they will become like a certain level, but we never able to teach them the true happiness. Okay, like we are able to pass on that concept of family, concept of doing your job honestly, working hard, achieve whatever you want. But somewhere is still that concept of happiness is missing, which is like the moment we will start talking moksha to them, they are out. Okay, they are not going to listen. For me, I think for us, for particularly for me, is just somehow reach to that level where you need not to think about anything, so we need not to work to achieve to that concept where you are just become happy. That is still a struggle. So I'm not saying it like I want to be there, but somehow your day-to-day activities or somewhere your surrounding keep pulling you back into the. I mean, it I think is going to be a constant. I'm sure I'm in that path, but I don't know whether I have taken the first step or second step. You're good, I don't Pradeep know. ji. Don't worry. इतना सोचने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा लंबा नहीं. But I have to say, like, you bring up exactly the point, right? The definition of moksha for us, when I say us, for people who are worldly, we're in the world trying to live our lives, should be becoming aware
and overcoming these things as much as we can. Like, I think it's really hard to go after the beautiful sunset that we see without really getting on a horse and going after it. Like, I think the way moksha is sold to us, or the way we've always thought about it, to your point, is very esoteric. It's very blue Elusive, sky, yeah, elusive. high, You have to chase pie after in the sky something. kind of thing. But in practical sense, you are going to get there if you follow certain steps, to your point, which is working through your day-to-day traps or day-to-day obstacles. You bring up a very, very good point. And the way I see all of this is also like there are different milestones along the road. Probably at this milestone today, you're stepping back maybe tomorrow, and then you're going ahead a few more milestones, but you're on the right path. You're on the right path. You're like a strong stock, which has dips and ups, but it goes up. Yeah, Right? that's what scientists we call it a trend line. Trend is going up. See, there you go. Yeah. So ultimately, dips will be there, up and down will be there. और किसी के पास कोई प्रश्न है इस लाइन में? So, as you mentioned, Shweta, that whatever sadhana you do, and until you practice that into your day-to-day's life, I brought up something. If you remember, I don't want to bring it up again because it is a recording. At that point of time, that's what I thought. Like, if I'm doing all this sadhana, learning Vedanta studies and all that, but if I'm not bringing it to practice in day-to-day's life, like, what is the point? So, as they say, when your inside changes, your outside changes. So there was something going on, and then when I stopped talking about it, Giving when- importance. Yes, I did not give importance. I did not even talk to the person about it. I completely stopped, and I said, I have to change. I cannot change the other person, and you won't believe it. The other person stopped that what I didn't like. That was an achievement which I wanted to tell you, that this is so true, that we have to bring that practice into our day-to-day's life. And another thing is, I was for last 1 month, like I was kind of losing my voice, and I was forced silence. Like, the doctor advised me that you don't have to talk, you have nothing, nothing can be done, and then you just have to stay home for a week. He wrote me a note, and then you stay home and just observe silence. So first it was very difficult for me, and as you said, talked about the manifestation, but my manifestation was for a long time that I want to go to Vipassana, but I didn't know that how it is going to be manifested and how it is going to come into my life. So when I was forced that no, you have no other choice, you have to be quiet. So first day, I just pulled my hair, like, what I'm gonna do, like, without talking. But then honestly, like I tell you, like, fourth day, actually I didn't want to talk. Because you know what, everything ran smoothly in the sense when you're not telling people, because I, like, for small things, like even if he's walking with his shoes, I knew that I can't say anything, so I'll go and just mop the floor after. So you know what, there was no clash, there was no fight or anything. So koi kalesh hi nahi so you know, it worked so whatever, I take it, I will take it. So exactly, so this is so true, that we have to practice that in our day-to-day's life, then only we can succeed in our goals, like whatever That's one milestone you achieved. Yes. Yeah, no, thank you for sharing. Monam is very good. That's a very powerful story, Mhm. because we were also talking today about how prana and awareness are intertwined. Wherever your prana goes, where your attention and awareness is. So the minute you take it away from what you don't want, you stop expending your energy on it. You redirect that energy towards what you want. So which is what you've done. Goes, energy flows. Exactly. So thank you for sharing that. That's beautiful. When we feel certain emotions, we vibrate at a certain frequency. And some emotions no use to us, and guilt is one of those, which is a huge trap for any of us, our relationships. That awareness is your biggest achievement, actually. If you're journaling, even like taking 2 minutes every day to write about how your day went, where you tripped up and where you became aware, like that itself as an exercise is powerful. And we were talking about how I'm not a writer. Me too. I record. I do voice notes about myself. I talk to myself and I'm like, wow, this happened. And guess what? I blew up.
and that's okay. But I blew up, and that's okay. And I found a way to anchor myself back. It can be sometimes 2 steps forward, 1 step back, but you are moving and you're walking. It's like every breath is like sadhana, so I have to remember that. That will help me control. Beautiful. Absolutely. सक्सेस स्टोरीज Yes. है ना? इसका मतलब है कि जो आदमी साधना करते हैं उनको क्रोध नहीं आता। आता है ना, क्रोध अच्छा है ना? 100%. आता है। क्रोध कुछ बुरी चीज नहीं है, आप क्रोध को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है एक ना? बार दिल्ली की बस में लिखा हुआ देखा था, जिस आदमी को क्रोध नहीं आता वो मूर्ख है। दिल्ली की बस वाले तो दिल्ली वाले जाने। बात सही है, क्योंकि ह्यूमन जो नॉर्मल पर्सन है उसको तो क्रोध आएगा। अच्छा ये बताइए, क्रोध इज नेचुरल और नॉट? नेचुरल है। एग्जैक्टली। सो माइंड नेचर का पार्ट है, प्रकृति में डुअलिटी है, शांत भी रह सकता है मन, क्रोध भी आ सकता है कि नहीं? हमको डुअलिटी के पीछे नहीं जाना है, हमको ये ऑब्जर्व करना है क्रोध किसको आ रहा है, किस कारण से आ रहा है। इट्स क्रोध इज लाइक एन एनर्जी। एनर्जी है कि नहीं समझते आप? इमोशनल एनर्जी है, बहुत वेग होता है, जैसे नदी में बहुत वेग आता है। क्रोध या कोई भी इंटेंस इमोशन, यही जो 6 षड रिपु बोले ना, 6 एनिमीज ऑफ द माइंड बोलते हैं। एनिमी क्यों बोला गया है? लेकिन वो एनिमी को आप दोस्त भी बना सकते हैं, अपने साधना के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। क्रोध एक वेग जैसा होता है, जो एकदम नदी में उफान आता है, लेकिन हम उसको डैम बना के उसको चैनलाइज कर लेंगे तो वो पानी यूजफुल होता है ना नदी का। उसी तरह क्रोध भी यूजफुल हो सकता है अगर आपको सही दिशा दें। एनर्जी को सही दिशा देनी है। इट्स अ मेंटल एनर्जी। आज जो ये है, जो हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वो मेरे क्रोध का एक मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं। मुझे क्रोध क्यों आया था, किसी को याद है? मैंने बहुत बार बताया है। मैं हेल्थ केयर में हूँ 20 साल से ओंटारियो में, और यहाँ का सिस्टम बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आता था, क्योंकि कोई उपाय नहीं है क्रॉनिक डिजीज के लिए। तो मुझे बहुत ही क्रोध आता था जब पेशेंट्स को गलत सलाह मिलती थी डॉक्टर से, या वो सही डायरेक्शन में भेजते नहीं थे। सिंपल पेन के लिए सिर्फ पेन किलर दे देते थे, उनको बोलते नहीं थे क्या करो। तो मैंने सोचा मुझे ही कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, क्रोध का कुछ यूटिलाइज करना पड़ेगा। इतना गुस्सा आता था, क्योंकि सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते, यू कैन ओनली चेंज योर सेल्फ। क्रोध अच्छी तरह यूटिलाइज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? उसी तरह हर एक विकार को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, तो काम इज लाइक craving for something. So I had this craving for creating something which can help human life. Craving physically, mentally, क्योंकि सिस्टम में सोल्यूशन नहीं है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ डिजीज का। क्रॉनिक छोटा बहुत बुखार, वायरस, बैक्टीरिया का उपाय अच्छा है, सर्जरी का अच्छा है, वो सब अच्छा मिल जाएगा आपको यहाँ सिस्टम में। बट क्रॉनिक डिजीजेस का उपाय नहीं है सिस्टम में। एक बार आदमी उसमें फंस जाता है तो फंसता ही चला जाता है ना। तो वो भी मेरा डिजायर ही था ना। डिजायर को एक रिपु बोलते हैं, मतलब एनिमी, वो शत्रु बोलते हैं काम को। फिर काम के बाद ही क्रोध आता है। काम इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द क्रोध। आपके पास एक डिजायर होगी, वो आपका फुलफिल नहीं हो रहा, उसे क्रोध उसमें चैनलाइज हो जाएगा। क्रोध के बाद लोभ आएगा। लोभ, मुझे मैं कैसे इसको अचीव करूं, है ना? कोई भी चीज को कैसे अचीव करूं, हर चीज को आप, लेकिन अगर आप जोड़ दोगे, आपका गोल जो है हायर है, सात्विक है मान लीजिए गोल, कि उसमें सबके लिए भला है। 2 टाइप का गोल हो सकता है, एक श्रेयस हो सकता है, एक प्रेयस हो सकता है। प्रेयस मतलब जो मुझे प्रिय है, मुझे जो अच्छा लगता है उसको प्रेयस बोलते हैं। श्रेयस मतलब जिसमें सबका उत्थान हो, इज श्रेयस फॉर एवरीबडी। अगर आप अपने काम, क्रोध, लोभ को श्रेयस से जोड़ दो, विच इज गुड फॉर एवरीबडी, देन समथिंग ब्यूटीफुल कैन बी मैनिफेस्टेड। क्लैरिटी आई? समझ में आया? ठीक है? आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं। फर्स्ट डे है, तो आपको फर्स्ट डे है यहाँ पे अभी। वो लिखा हुआ वहाँ अच्छे डायलॉग Ashna, today is the first day, so नहीं, दैट्स ओके, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। लिखा तो बहुत कुछ लिखा रहता है। maybe अगले 2-3 सेशन में क्रोध नहीं, अब जो आपने satisfaction बताया ना, लगेगी दिस इज ऑल द सीक्वेंसेस जो आई डोंट नो 4-5 थिंग्स व्हाट यू सेड इट, आई एम नॉट एज यू नो एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल लेक्चर लाइक यू। क्रोध का ही ले लेते हैं ना, क्रोध तो सबको पता है, सबको आता है। मैं वही कह रहा हूँ, तो उसको आपने सीक्वेंस में जोड़ दिया। व्हाट आई मीन टू से कि क्रोध आप बोलते हैं कंट्रोल करो, साधना करो, ये सब नहीं, साधना रखी रह जाती है। मैं नहीं बोलती हूँ जब कंट्रोल क्रोध करने के लिए। आता मैंने कभी किसी को नहीं बोला कंट्रोल करने के लिए। हाँ, हाँ, मैंने कभी बोला किसी को कुछ कंट्रोल के लिए? उसे सही डायरेक्शन में ले जाओ। हाँ, उसको सही दिशा पर दिखाओ। साधना से अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है जब आप उस पर एनालाइज करते अभी हो। बाहर निकलो, स्नो पड़ी हुई है, गाड़ी फंस गई, सब साधना रखी नहीं, रह नहीं, जाती है। ऐसा नहीं होता। नहीं होता। ऐसा नहीं होता। आपका कम आ जाए, कम हो जाए। नहीं, then you'll be becoming more practical and also more fruitful. No matter what the situation in life is, the way you deal with the situation changes completely. It will take time, 1 year, 2 years, 5 years. जितने आपके अंदर में वो वेग है ना, वो तूफान है, उतना समय लगेगा उसको एक पर्टिकुलर समतल लेवल पे आने के लिए, ताकि वो चैनलाइज अच्छे से करो। कितने
डिफिकल्ट सिचुएशन से जाते हुए भी जो साधना करते हैं, जो उसमें परिपक्व होते हैं, परिपक्व मतलब उसमें रूटेड होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट दे डील वेरी नाइसली. बाबा रामदेव इतनी साधना करता है, गुस्सा आता है उसको? तो आने दो ना, गुस्सा बुरी क्यों है? आप गुस्से पे क्यों फोकस करते मैं हो? कह रहा हूँ कि उन्होंने जो साधना manifest ऋषि किया- है, मुनि, उनको गुस्सा क्यों आता है? परशुराम आप- इतना ज्ञानी था, इतना गुस्सा क्यों आता आप है? ऋषि बन के गुस्सा करो ना. मैं पहले वैसे ऋषि कह तो रहा हूँ, बनो. सभी नहीं को पहले ना- ऋषि बनो ना, पहले रामदेव बाबा बनो ना. और अब यही तो पर ठीक है, फिर जब बन जाएंगे नहीं, तो बात करेंगे। बिना रामदेव बाबा उसके बने लिए आप गुस्सा करना नहीं चाहिए. बीवी को छोड़ दें, ब्रह्मचारी बन जाए। नहीं नहीं, रामदेव जी हमारे तो कभी ये गलत कॉन्सेप्ट है. हमारे यहाँ सारे ऋषि मैरिड होते थे, पता है? हाँ। कुछ लोग ही बस स्मॉल परसेंटेज अनमैरिड होते थे, जो बाल ब्रह्मचारी होते थे. मोस्टली ऋषिज मैरिड रहते थे. I think the hard reality, because as a parent now, and I look at my parents, I see where they've messed up and I see where I'm messing up. And I think for everyone, it's the first time. Like, this is the first time we're all doing it. You know, we're not going to get it right. It's not going to be perfect. And I think as parents, you're always going to do something where your child looks back and says, you know what, you didn't do enough for me. Or you didn't do this for me. It's a standard question. Yeah. Exactly. I don't think you can actually do anything about it. And then they're going to grow up and they're going to have kids and they're going to be like, oh my God, what an absolute You can do nightmare. one thing about it. About? You can actually acknowledge it. Yeah, yeah. Yeah, and you tell your kids, I did my best. I may not be Exactly. up to your standard, Yeah. but at that point, what my buddhi allowed, मैंने अपना सबसे अच्छा किया उस समय के हिसाब से. I'm sorry I couldn't do this. That's what you felt. Exactly. And my kids also tell me the same thing. It's standard. Because I think that's standard, right? Like even with 3-year-olds, I have the same. Like they talk to me now and they tell me where I've like not, you know, kept up my parenting or whatever in their own 3-year-old language. And sometimes I go into the same traps. Like it's just hard to do. It's parenting. And But we are not born as parents, right? We are also learning. exactly, right? that's what I'm saying. It's the It's first a learning time. experience As for us, when yeah. you have a child, I mean, because I've gone through this recently, like I remember first day with 2 kids, I was like, excuse me, what am I doing? Like, what am I supposed to do? You go change the diaper. I don't know. Like, you don't know anything. You're learning life. It's you become a But whole then remember human being. one thing, everybody. It's just one role that you're playing. Yeah. Don't get too caught up with your role as a Yeah. parent, Yeah. because that's not the goal of your life. Okay? And then That's another one of the thing roles. these days, like I always say, this is my soul contract. Like, because everybody whosoever is coming in our life is for a reason. Correct, With our yes. karmic accounts. Journey. Journey. So it's their journey, and this is my journey. So now this actually helped me a lot when I started thinking like, you know what, this is a soul contract. So that helped me a lot. Yeah, because I think that is my primary reason Yeah. why I joined Yeah. Mokshada. No, this is what Because I have I been needed to make learning. my mind Yes. Including with your children. Exactly, right? And because your being a husband. mother, I always thought like my family has to be perfect. My family has to be perfect. My children need to be perfect. My house need to be perfect. But now I think, why? Yeah, let go. Everybody has their own journey. I learned from Archana as well, because when I needed a person who could listen to me, I could talk to. Archana was one of them. Like she gave me her time. Yeah, and I learned that this is journey. They have their own journey. This is my journey. Why should I come? मुझे ड्यूटी करनी है, वो मैंने कर दी. I did my best. That's where the concept of Karma Yoga comes, which we are going to conclude today. Karma Yoga. ठीक है? Sorry, I'll just say Haan. one thing and close. Actually, 2 things. Sorry. Feel free. Sorry. अपने ही समझो. I'm only going to take 5 minutes. We talk about sadhana and we've talked a lot about becoming something different. I think it's important to understand sadhana is kripa sadhya, not karma sadhya. We are not doing anything when we do sadhana. हमें कुछ करना नहीं है. Like we don't have anything to do. It happens to us. So sometimes surrendering, we forget when we do sadhana. We think we are doing japa, 10 malas every day. Now I have to become a different person. It happens and you just have to be aware. Last thing I'll conclude saying is I want to talk about my moha and my attachment through books. So I have brought some books from my recent trip to India, and I'll lay this out here, you know. I was hoping, you know, whoever wants to take it can take it. It's from Munger, Bihar Bihar School of Yoga, Rikya Peet.
very nice little books, and if we can all just circulate it with the group every Satsang. satsang, we can, can read bring and it give back back. and exchange. Yeah, exchange. So I will Book keep that club by Shweta. Yes, yes. That is so nice. अच्छा इधर है हमारे Maybe like I'm just thinking about it. Like if we're all talking about our kids, okay, and when we review are we complaining about our parents? I don't think so. Are our parents ever not happy with our achievement at one point? Yes, they sometimes were. he complained maybe sometimes some Yeah, years like back you will review it, and now we think about what we were complaining about. Not because the way they groomed us, we were complaining about the facilities or their lifestyles. But so same thing. It is basically it's our role. Why we are frustrated with the kids sometimes because they are not behaving as per our requirements or the way we think. Okay, but at the same time, the fundamental is at one point they will also realize if our grooming is right, they will realize that what it is. So I think sometimes we are wasting our time. yeah agreed That's good, what good it is. conclusion best conclusion that's why he's role number 1 बट मुझे ये भी लगता है कि ग्रूमिंग सभी अच्छी ही करते हैं अपने तरफ से अच्छा ही सभी करते हैं करते हैं है ना अब जिसके बच्चे ड्रग एडिक्ट्स निकल गए वो कभी उन्होंने ऐसी ग्रूमिंग तो नहीं दी थी कि वो ड्रग एडिक्ट हो बट होता है ऐसे हो जाते हैं But बहुत like I can give some example. हाँ एग्जैक्टली multiple You will factors find होते हैं. example around You of can't us, see. okay? Like I know when my batch, like he was the topper in the states and everything, okay? When he came, he was a very young kid, like 16 and a half years. Somehow he got into those things. Nothing wrong with the grooming of the parents, okay? कर्म रहता है अपना At that particular point, like he could not make the right decision. Company was still right because you are surrounded with all intelligent people. But out of those 125 or 120 people, so one person somehow got into a different direction. And what influenced to that person, we don't know. सो वी डोंट नो बिकॉज ऐसा ऋषियों ने बोला है कर्म की जो गति होती है ना बहुत ही गुह्य होती है मतलब डीप होती है वो कैसे मैनिफेस्ट होगा तो नो मैटर हाउ मच वी लव आवर किड्स दे विल गो थ्रू ओन पेन एंड प्लेजर राइट कितना भी आप उनको प्रोटेक्ट कर लो डजेंट मैटर दे हैव टू गो थ्रू दैट चर्निंग ऑफ देयर ओन कर्मास ठीक है तो वो रिलेटिव डिटैचमेंट यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एज यू आर ब्रिंगिंग अप योर किड्स अर्ली एज ऑन वो रिलेटिव डिटैचमेंट आना चाहिए कि I'll give my best. As a parent, your main job is to protect and provide. That you do to the best of your ability at every moment. उसमें कर्मयोग की साधना उसके प्रिंसिपल्स आते हैं जो हमने डिस्कस किया था तो आज मैं एक भजन के माध्यम से कर्मयोग हम सीखेंगे सब लोग अपने इसमें हम बस उसका लिरिक्स हम गाएंगे नहीं लिरिक्स निकाल लीजिए अपने अपने फ़ोन पे सीताराम 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 कहिए नमस्ते नया नया बच्चा पैदा हुआ है टाइम लगेगा No, I guess what his meaning was कि क्रोध is also one kind of feeling, right? जो हमको निकालनी है अंदर रखेंगे तो it spoils yourself too, right? देखिए एक होता है मैनिफेस्ट करना एक होता है सब्लिमेट करना सब्लिमेशन प्रोसेस पता है फ्रॉम वाटर यू डायरेक्टली कन्वर्ट टू वेपर Yeah. योगा आपको सब्लिमेट करना सिखाता है Of course. ओके दिस इज वन ऑफ द बेस्ट भजन्स फॉर अंडरस्टैंडिंग कर्म योगा ये साधना को भी डिस्क्राइब करता है और कर्मयोग को भी डिस्क्राइब करता है कर्मयोग को बुद्धि योग भी बोलते हैं भगवत गीता में बिकॉज कर्मयोग इज नॉट व्हाट यू डू कर्मयोग इज व्हाट योर माइंड गोज थ्रू व्हाइल डूइंग कर्म समझ में आया इट्स कॉल्ड बुद्धि योग सो कर्म योग इज नहीं आप कितना काम करते हो तो आप कर्म योगी नहीं बन जाते हो ओके आप सिर्फ कर्म ही रहते हो मतलब आप बहुत काम करते हो वर्कोहॉलिक हो बट कर्म योगी आप तभी बनते हो योगी मतलब होता है जिसका योग रहता है ईश्वर से हमेशा जो हमेशा जुड़ा रहता है वो सेंटर से और ईश्वर हमने समझा था ईश्वर का भी डेफिनेशन हम समझेंगे मे बी आज नहीं बट नेक्स्ट सत्संग में डिटेल में हमने समझा था कि ईश्वर इज नॉट समबडी सिटिंग अप इन द हेवन विद अ वाइट बियर्ड है ना इट्स अ यूनिवर्सल एनर्जी फोर्स लाइक फोर्स भी नहीं बोलेंगे इट्स एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ विच एवरीथिंग एग्जिस्ट प्रकृति उसका मैनिफेस्टेशन है आपके अंदर भी है वो बाहर भी है ना हमने ये सब समझा था ना वो इसलिए मैंने 2 वीडियो भेजा था देखने के लिए कि ईश्वर के 3 मैनिफेस्टेशन है ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब क्रिएशन सस्टेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन जो हमेशा बॉडी के अंदर भी चलते रहते हैं बॉडी के बाहर भी चलते रहते हैं लाइक योर वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स
आते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, दे सस्टेन फॉर 100-120 days एंड देन दे डाई। तो अंदर भी ईश्वर का काम चल रहा है और संसार में भी ईश्वर का काम चल रहा है, मैनिफेस्टेशन होता है। तो कर्म योग को बुद्धि योग बोलते हैं क्योंकि ये बुद्धि का फेर है। द वे यू डू योर वर्क इज कर्म योग विद पर्टिकुलर एटीट्यूड। तो मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। आपकी साधना हमेशा चालू रहनी चाहिए। जो भी आप सेवा कर रहे हो तो हर काम सेवा बन जाता है। आपको सेवा भाव से हर काम करना है, हर रोल निभाना है। जैसे आप अपने बच्चों को भी देख रहे हो, आप बच्चों को एज अ मदर और फादर, कहाँ चले गए फादर? 2-3 गायब हो गए। ये मेन फादर चला गया। वेट कर लें क्या उनका? There's a question here. 1 second. Sorry, Rashmika. No, it's about we talked about this Rajas, Tamas, and Sattvic, right? How do you, like, sometimes we feel, and then sometimes we feel, okay, there's some bit of laziness. Yeah. Like it sets in. I mean, we don't consciously do that. Yeah. And then, but we know we should not be like that. Okay, there's Yeah. some. How do you get the balance, or how do you correct the imbalance? I know we talked about breath also, but Yeah. sometimes one takes over the other. When we look at all of us in a spectrum of people who are conscious and aware of what they do, to the end of people who live life unaware, we all have some mix of sattva, rajas, tamas. It's not like the person who's most aware is only sattvic and the person who's not aware is tamasic. Everyone has all three, sattva, rajas, tamas. I think it's when you do any kind of practice, breathing or yoga, or you bring a sense of regime into your life, routine into your life, where you are taking the steps to elevate yourself from wherever you are, either from tamas to rajas, rajas to sattva. Those things help. And to me, all of that, sometimes we have to, in a way, switch off our intellect. I think we overuse our intellect. Sometimes it's switch it off, throw it away, wake up, do your thing, and look at yourself from day 1 of a month, and see yourself 60 days from there. See what the changes are, because I think that's where the grace and the kripa, like, it automatically transforms you without having for you to apply too much of your doership. So I think there's things you can put in place, like all your yogic sadhanas, everything from the food we eat to the people we talk to the conversations we engage in. Any kind of conversation where we're talking about another person who's not in the room, where we're negative, all of that adds karma, attachment, everything. So the minute we become aware and say, okay, I'm actually not going to spend my energy doing that, I'm going to do something else, all of the changes we make result in that balance and result in the elevation. At no point can you completely get rid just because you've reached a height. A person who has none of the three gunas is Parabrahman. So unless you're there, you have to deal with the gunas. They're a very intricate part of our lives. So the question is, how can we be aware and how can we manage that tendency? वो भी अभी आएगा, समर्पण भाव से कैसे चेंज आता है ना, अभी कर्मयोगा का ही पार्ट है वो। तो मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। आप जो भी काम करें उसको सेवा भाव से करना है, इन द सेंस जैसे बच्चों का भी देखभाल कर रहे हैं। सो दीज आर लिटिल ह्यूमन बीइंग्स इन आवर लाइफ्स, जिनको हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व है उनको बड़ा करना एक पर्टिकुलर वे में। सो उस तरह से करना है, रादर देन दीज आर माई किड्स एंड आई वॉन्ट देम टू बी इन दिस वे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास जितना है आप उतना ही दे सकते हो उनको, है ना। जितनी बुद्धि है, जितना संस्कार है, जितना आपने भजन सीखा उतना भजन आप दे सकते हो बचपन से ही, जो दे सकते। वो जैसे कर्मों की पेयरिंग होती है ना, वो बच्चे भी वही डिजर्व करते हैं जो उनको मिलना है एक माँ से। याद रखिए, मुझे कोई बोल रहा था कि ओ उसकी माँ तो ऐसी है, वो बच्चे को पता नहीं क्या सिखाएगी। मैंने बोला वो बच्चा ऐसे ही माँ को सेलेक्ट किया है, उसको उतना ही सीखना होगा उस माँ से। तो एक जीवात्मा, जिसको इंग्लिश में लूजली सोल बोलते हैं, जीवात्मा मतलब जो हमारा पूरा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का मिला के जो ये जीवात्मा बनता है, जो शरीरधारी होता है, वो वैसे ही पेरेंट्स को चूज करेगा जिससे उसको जितना लेना होगा, ग्रहण करना होगा। तो मेरे बच्चों का भी वो भाग्य है कि उनको मेरे जैसी माँ मिली, तो आपके बच्चों को भी भाग्य है कि उनको आपके जैसे पेरेंट्स मिले। तो वहाँ पे एक डिटैचमेंट करना है कि नो मैटर व्हाट मच आई डू बट दे हैव देयर ओन जर्नी टू। तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ दे सकते हैं उनको जो हमारे पास है। तो 2 चीज़ देना है पेरेंट्स को, प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग, जो भी आपके पास है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, संस्कार, जो भी आप दे सकते हो। आपका काम सिर्फ देना है उनको, वो हमसे लेने आए हैं। आपको उनसे कुछ नहीं मिलेगा। ये मत सोचिए कि बुढ़ापे में वो आपको ध्यान रखेंगे। दिल गेट फेड अप विथ यू एक्चुअली इफ यू गेट टू सिक।
because they have their own life. They have not come us to nurture us. We only have to give. And भाग्य अच्छा है तो बोनस में वो आपको अच्छा करेंगे आपका समझ में आ रहा है, अगर आपको रिसीव करना लिखा होगा उनसे तो पहली बात कि वहाँ पे एक डिटैचमेंट होना है कि दे हैव ओनली कम टू गेट थिंग्स फ्रॉम यू एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक आप ऋण पे कर रहे हो, ऋण पता है ना हिंदी वाला ऋण, ऋण साबुन नहीं, ऋण पे कर रहे हो. ओके, तो वो है मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में. उसी तरह नो मैटर जो आपके जॉब में आता है, जैसे ईच एंड एवरी एनकाउंटर आई हैव विद माय पेशेंट्स, सेवा भाव होना चाहिए मेरा कि व्हाट आई कैन गिव इट टू देम. इफ आई कीप लुकिंग मुझे इनसे कितना पैसा मिल रहा है या मेरा जॉब कैसे चल, तो वो फिर सेवा नहीं है, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है. कर्मयोग इज नॉट ट्रांजैक्शन, कर्मयोग इज सेवा भाव. एक मेरे पास पेशेंट थी जिसकी मदर पैलेटिव थी. शी वाज सपोज टू डाई इन लाइक फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स एंड शी वाज सो अपसेट अबाउट इट. मैंने बोला अभी इस अपसेट को चेंज करते हैं. बचपन में जैसे मम्मी ने तुम्हारी देखभाल की, नाउ इट्स योर टाइम टू गिव बैक दैट सेवा. शी इज गोइंग टू गो एनीवेज, इट्स नेचर राइट. शी हैज गॉट अ डिजीज एंड शी विल गो, बट इफ यू चेंज यू शिफ्ट योर एटीट्यूड, दोनों का लाइफ अच्छा हो जाएगा. उसके बाद सेवा लाइक शी वाज वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी. तो जितना सेवा कर सकते हो करो. Spend more time, take more videos of her, ask her to do whatever like she likes. Like her mother used to sing, तो बोले और videos लो उनके singing के. Just enjoy time with her because you know she's going to die in weeks. तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में. इसका अर्थ क्या हुआ? राम यहाँ पे जो सब में रमता है उसको राम बोलते हैं. That means वो डिविनिटी आपके अंदर ही है, आप खुद ही राम हो. तो हम राम को ऐसे बोल के भगवान एक पेडेस्टल पे चढ़ा के ऐसे नहीं रख देना कि वो राम है, उसका वो अच्छा है, आइडियल है, हम सिर्फ उसको पूजा करते हैं. नहीं, हमको वैसा बनना है. वो आइडियल हमारे सामने क्यों रखा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों रखा गया? ताकि हम उसके जैसे बन सकें. उनके जीवन अच्छा था क्या? कितनी कठिनाई थी उनके जीवन में. नई नई शादी हुई थी, जंगल में चले गए, सीता माँ के भी लेके, महलों में जो रहने वाले लोग हैं. लेकिन उन्होंने क्या कहा? एक लक्ष्मण जी और राम जी का एक राम गीता आती है, लक्ष्मण और राम जी के बीच का कॉन्वर्सेशन है. तो लक्ष्मण पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं पिताजी से लड़ाई की? आप तो सही थे, आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आपका अधिकार था, राज्य आपका राज्य अभिषेक होने वाला था, आप ही उत्तम अधिकारी थे. फिर आपने वहाँ पे हट क्यों नहीं किया कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा जंगल? आप कामवश आके अपनी पत्नी का बात सुन के मुझे जंगल भेज रहे हो क्योंकि आपका मोह है आपके पत्नी से. आपने ऐसा क्यों नहीं बोला? तो राम जी ने उसका बहुत अच्छा आंसर दिया था. उन्होंने बोला था पिताजी अधार्मिक तो नहीं थे, मतलब ही वॉज दशरथ, ही वॉज ऑल्सो वेरी हाई इन हिज स्पिरिचुअल जर्नी. बोलता है कभी आज तक पिताजी ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया और कैकेयी माता ने भी कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया. मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है. एकदम अचानक से सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो गया, जैसे लाइक एज दो वाज लाइक अ शॉक कि इतना बड़ा ये लगा झटका कि कल राज्याभिषेक होने वाला, आज बोला गया कि नहीं जंगल जाओ. तो वो बोलते हैं कि जब कुछ ऐसा होता है जीवन में, जब आप यू कैन नॉट मेक सेंस ऑफ एनीथिंग, देन इट्स लाइक अ स्टॉर्म इन लाइफ. जैसे लाइफ में स्टॉर्म आता है ना, तो उस केस में क्या करना चाहिए? यू शुड नॉट फाइट. जैसे बोलते हैं ब्लिजर्ड आ रहा तो बाहर नहीं जाओ, उस समय जस्ट गो विद द फ्लो and try to make sense of it later. So मुझे लग रहा है कि it is preparing me for something higher. और वो क्यों हो रहा था? क्योंकि पूरा रावण का वध करना था ना. वो अवतार का क्या रोल होता है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता. धर्म के संस्थापन करने के लिए अवतार का जन्म होता है. वो अवतार का रोल ही था रावण का वध करना. तो वो पूरा उस तरह डायरेक्ट हो रहा था. तो राम जी बोले कि नहीं मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, बट देयर इज अ हायर पर्पस टू इट, मुझे क्यों वन भेजा जा रहा है, विल सी हाउ इट मैनिफेस्ट. सो ही वेंट विद द फ्लो. लेकिन वहीं पे भगवान अर्जुन को बोलते हैं फाइट, डोंट विथड्रॉ, क्योंकि वहाँ पे एज अ क्षत्रिय उसका धर्म था फाइट करना. तो कहाँ विथड्रॉ करना है, कहाँ फाइट करना है, वो सेंस भी आना. तो वो जितना आप राम के साथ जुड़ेंगे वो आपको क्लैरिटी आती जाएगी कि जीवन में कहाँ पे विथड्रॉ करना है, कहाँ पे सामना करना है. बोलते हैं यू हैव टू पिक योर बैटल्स. तो कहाँ पे युद्ध करना है, कहाँ पे वन जाना है, विड्रॉ करना है, मौन व्रत रखना है, वो समझ में आने लगता है. और राम हमेशा आपके साथ ही रहते हैं क्योंकि राम आप स्वयं हैं, आपके अंदर वो डिविनिटी है. तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में. विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है. कर्म ये ऐसा नहीं है कि कोई आपको चोरी करके चला गया आप खुश हो जाओ, अभी उसका रिपोर्ट नहीं कराना पुलिस में, ऐसा नहीं बोल रही है. ये कर्मयोग के संदर्भ में है. इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कर्मयोग, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही. जैसे बच्चों को हम रात में जग के उनकी पूरी सेवा करते हैं ना, डायपर चेंज करते हैं, उनको ये करते हैं, कितना भी वो परेशान हो, लाइक सर्दी खांसी लगे, हम उनको जग के सेवा करते हैं ना. डूइंग योर ड्यूटीज, जो आपके इस समय कोई भी हानि आता है या लाभ आता है उसको पचाते जाइए, कीप डाइजेस्टिंग इट. उसके लिए टेंशन नहीं लेना कि ओ माय गॉड, जाके रैंट नहीं करना, ओ माय गॉड मेरे बच्चे मुझे इतना परेशान करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं. वाइल डूइंग योर ड्यूटीज, अगर आपको जॉब पे भी जाना है
और बहुत डिफिकल्ट कम्यूट है, एंजॉय दैट कम्यूट. ओके, डोंट कीप रेंटिंग व्हाई डू आई, क्योंकि आप प्रेजेंट को कोस के अपना फ्यूचर अच्छा नहीं कर सकते कभी. You have to enjoy and accept and digest your present. Then only you'll be able to create a better future for yourself. While doing your duty is not that somebody is torturing you, फिर भी विधि का मुझे टॉर्चर कर रहा है, मेरे भाग्य में टॉर्चर लिखा है. नहीं, ऐसा नहीं है. समझ रहे हो दोनों का डिफरेंस? जैसे बोलते हैं ना, क्रोध आता है तो क्रोध को मैनिफेस्ट करना, एक्सप्रेस करना है या विड्रॉ करना है, वो आपको क्लैरिटी आएगी कि डिपेंड करता है कि हानि किसकी हो रही है. मतलब व्हाट इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड हियर? इज दिस जस्ट पीस ऑफ माइंड और समथिंग बिगर डैमेज इज गेटिंग कॉज बाई दैट अदर पर्सनस एक्शन? तो जब आप ऐसे इवेलुएट करते हो ना कि मुझे बोलना चाहिए या चुप रहना चाहिए, क्लैरिटी तभी आती है जितना आप कनेक्टेड रहते हो अंदर. वो साधना हेल्प करती है आपको. जैसे मैंने बोला था, डेडिकेटेड 10 मिनट से शुरू करो. जो भी साधना सुबह कर रहे हो, नहा धो के बिफोर यू स्टार्ट योर डे, इट्स अ मस्ट. जस्ट लाइक ब्रशिंग एंड बेदिंग, एंड दैट टेक अप टू 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स एवरी डे तो होना ही चाहिए साधना. अपार्ट फ्रॉम योर योगासना क्लास, दैट्स अ मस्ट. देन ओनली दैट क्लैरिटी कम्स. हाउ आई हैव टू परफॉर्म. अर्जुन जैसा योद्धा कैसे बनना है? वेर आई परफॉर्म वेल, डू माई ड्यूटीज विदाउट गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट. क्लैरिटी आएगी. नेक्स्ट पैराग्राफ में है, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा. क्रिया अभिमान मतलब कर्तापन का भाव हमारा कि मैंने किया है. या जैसे आपने बहुत अच्छा घर बना लिया, उसका घमंड हो गया, मेरा तो इतना ब्यूटीफुल घर है, मैंने कनाडा आके इतना अच्छा कर लिया. और अपने बच्चों को ये सुनाते रहते हैं, यू नो हाउ मच आई हैव स्ट्रगल. आई हैव सीन लॉट ऑफ इमिग्रेंट पेरेंट्स टेल दिस टू देयर किड्स. And always, I think everybody. ओह, तुमको पता नहीं मैंने इतना स्ट्रगल किया, यहाँ पे आके कंट्री में न्यू आके क्या क्या करना पड़ता है. मैंने चौकीदार का भी जॉब किया, एक्चुअली मैंने किया है, बट आई एंजॉयड दैट जॉब अ लॉट. तो फिर क्या फर्क पड़ता है? हाँ, तो अभिमान नहीं करना है. Everybody has to go through that struggle. That doesn't mean you have to keep telling it to your kids or anybody. हाँ, और ये अपने आप को भी सुनाते हैं, अपने आप में भी घमंड आ जाता है. माय गॉड, मैंने इतनी मेहनत की, अभी मुझे रिलैक्स करना है. पता चला 60 साल के रिलैक्स करने की जगह ऊपर ही चले गए, इतना टेंशन लिया. इतना अभिमान हो गया कर करके, मैंने इतना किया, वो गुब्बारा फूट गया एक दिन. हार्ट अटैक हो गया. सॉरी, आई डोंट वांट टू दिस थिंग नेगेट एनी फिजिकल हेल्थ और ये सब जो होता है स्ट्रेस के कारण. बट वाइल डूइंग योर कर्म, यू शुड नॉट बी गिविंग टू मच इंपॉर्टेंस टू व्हाट यू डूइंग. करना है तो करना ही है, उसमें क्या है? उसको क्यों इतना बड़ा ये बनाना कि मैंने किया. सब करते हैं. अभी वो ज़माना तो नहीं है जब हमारी दादी नानी कहीं से कुएं से पानी लेके आती थी, या खेत में लोग जाके कुल्हाड़ी चलाते थे. वो भी लोग करते ही थे मेहनत. तो मेहनत सबको करनी पड़ती है जीविका चलाने के लिए. आपने एक डिफरेंट टाइप से मेहनत की, उन्होंने डिफरेंट टाइप से मेहनत की. कितने लोग ने, फ्रीडम फाइटर्स ने कितना स्ट्रगल किया. नेक्स्ट है, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा. इसका मतलब ये नहीं कि राम जी ऊपर बैठ के बोल रहे हैं तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा, तुमको मिलेगा. ऐसा नहीं है. इसका बेसिकली ये है, वट एवर इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कर्मा. द वे लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑपरेट्स, एग्जैक्टली द सेम वे लॉ ऑफ कर्मा इज ऑपरेटिंग विद इन यू, अराउंड यू. उसके हिसाब से ही होगा. जैसे कई बार देखते हैं ना, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं बट रिजल्ट नहीं मिलता. कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं, बहुत अच्छे सक्सेसफुल हो जाते हैं. फिर उनके प्रारब्ध कर्मों का फल है. तो प्रारब्ध कर्म जब फलित होता है ना, तो चाहे तो आप कुछ भी नहीं करोगे, जहां हाथ लगाओगे सोना बन जाएगा. वहीं कुछ लोग का प्रारब्ध कर्म जब फलित होता है, जो बोलते हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं मेहनत, बट कहीं कुछ हो नहीं रहा है. बट उसमें क्या करना है, अपनी साधना को और तीव्र बनाना है, इंटेंसिफाई करना है, क्योंकि आपका प्रेजेंट आपको प्रारब्ध को कैंसिल करता जाएगा. आने दो जो आ रहा है. प्रेजेंट कर्मा इज, जो भाग्य बोलते हैं ना, इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्रारब्ध कर्म प्लस योर पुरुषार्थ. आप क्या मेहनत कर रहे हो उस पर. कर्म फल तो सबको मिलता है, बट उसका लेके आप क्या कर रहे हो, उसको और नेगेटिव बना रहे हो या उससे कुछ सीख के आगे बढ़ रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है. बिकॉज दैट्स गोइंग टू मेक योर फ्यूचर. प्रेजेंट इज वेरी पावरफुल. प्रेजेंट में जो आप सोच रहे हो या कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है. इसीलिए साधना के थ्रू हम क्या करते हैं, अपना ध्यान हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में लाने का ट्राई करते हैं. साधना इज नथिंग बट 1 पॉइंट फोकस, एकाग्रता. जैसे बोला धारणा मीन्स 1 पॉइंट फोकस. और धीरे धीरे वो कभी जाता नहीं ध्यान. वो ध्यान नहीं जाता क्योंकि हैबिट नहीं है. इट्स ऑल अबाउट सिटिंग विथ योर सेल्फ एंड प्रैक्टिसिंग. नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं बहुत ट्राई किया, बट एक्चुअली मैं जब से डिटेल्स पूछती हूँ तो अपना ब्लॉक ही क्रिएट कर रहे हैं ना, मत बोलो ऐसे. नहीं भी जा रहा है तो बैठो. जैसे पंखे का स्विच ऑफ कर देते हैं तो राइट अवे तो बंद नहीं होता है ना. इट टेक्स टाइम. सो माइंड इज मोर डिफिकल्ट देन पंखा. चलता ही रहता है. कई बार ऐसा होता है कि सर्कमस्टांसेस की वजह से होता है. जैसे मैं वहाँ ऋषिकेश में थी, तो जैसे मैं करती थी ध्यान, मुझे ब्लू लाइट मेरे आती थी. अभी यहाँ आके आनी बंद हो गई. तो डोंट गो आफ्टर एक्सपीरियंसेस ना. रेड लाइट है, स्टॉप. पतिदेव इज लाइक रेड लाइट, स्टॉप.
जाने की तैयारी हो रही, देखो संन्यास मार्ग में रोको। चाय नहीं मिलेगी फिर। चाय जो See, I always say, don't go behind experiences. Go behind disciplined practice. First D is discipline. Experience क्या है? Experience आता जाता रहेगा. And experience of the mind or the body is temporary. Experience can fool us also. For example, कोई बहुत अच्छे से आपसे बात करे, अंदर क्या सोच रहा है आपको पता नहीं है ना, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो go beyond experience. ओके जैसे हम देखते हैं सूर्य नीचे जा रहा है ना, सूर्यास्त हो रहा है, बट एक्चुअली होराइजन मूव हो रहा है ना, अर्थ इज मूविंग, सूर्य तो कहीं नहीं जा रहा है. सो आई कैन टेल यू विद गारंटी, अगर आप 40 डेज जाके सूर्यास्त देखोगे और सोचोगे अर्थ मूव हो रहा है, तो आप ऐसे ही देखने लगोगे अर्थ मूव हो रहा है, सूर्य नीचे नहीं जा रहा है. लेकिन उसका दृष्टि परिवर्तन कैसे होगा? अभ्यास से, प्रैक्टिस. उसी तरह मन परिवर्तन होगा कैसे? अभ्यास से. एंड वैराग्य, वैराग्य किससे? अपने प्रैक्टिस से भी, कि डोंट ट्राई टू री एस्टैब्लिश दैट एक्सपीरियंस कि अरे मुझे ब्लू लाइट दिखी थी, मुझे वापस ब्लू लाइट दिखी है, ग्रीन लिखी तो मैं हैप्पी नहीं होंगी. नहीं, वैराग्य होना है, होने दो यार, माइंड का एक्सपीरियंस था ब्लू लाइट. मेरे को अपनी साधना करनी है नो मैटर व्हाट. ध्यान लगे नहीं लगे, मुझे ये 20 मिनट बैठना ही बैठना है एक पर्टिकुलर स्थान पे, डेजिग्नेटेड प्लेस, डेजिग्नेटेड टाइम. दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. डिसिप्लिन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई कैन नॉट. क्वेश्चन ये है कि जब आप इवॉल्व होने लगते हो, जब आपको थोड़ा बहुत नजर आता है कि आप इवॉल्व हो रहे हो किसी एक्सपीरियंसेस से, तो यू गेट मोर प्रॉब्लम्स, क्योंकि ओके यू डेल्ट विद दिस, नाउ फेस दिस, एंड देन हाउ डू यू रिएक्ट? वेरी गुड क्वेश्चन. आप ग्रेड 1 में रहते हो प्राइमरी स्कूल में तो इजी एग्जाम होता है ना, मिडिल स्कूल में जाते हो तो डिफिकल्ट, हाई स्कूल में तो और डिफिकल्ट, आईआईटी का एग्जाम होगा तो और डिफिकल्ट. तो जैसे जैसे अपनी साधना में इवॉल्व होते रहते हो, सिचुएशंस लाइफ में आ सकते हैं, एंड देन यू हैव टू वो हर्डल भी क्रॉस करना पड़ता है. ठीक है, धीरे धीरे करके. कई बार अगेन ये कृपा जनित होता है. अगर आपको राइट डायरेक्शन में जा रहे हो और भगवान की कृपा हुई, आपके कर्मों में जो लिखा है, अगर आपको ग्रो करना है, तो एक्चुअली ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा. इट्स लाइक अ टेस्ट फॉर यू, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट. वहाँ पे आप फिसल गए तो वो फिसल ही गए फिर वापस, है ना. वहाँ पे संभल गए तो आप उसको पार कर गए. I think also experiences are a way to extinguish some of the karma, right? You get some challenging situations, challenging people in your life to work something out. Again, going back to it's all Kripa Satya, some of this is Kripa Satya. So the more we surrender, I think the more, we're able to surf over the challenges in life. सिचुएशन से लड़ना नहीं है, उसको पहले बात एक्सेप्ट करना है. ट्राई टू डू द बेस्ट मैनूवर यू कैन डू विद द लाइफ. दैट्स ऑल इट इज. और अगर आ रहा है डिफिकल्ट सिचुएशन, व्हेन यू आर प्रोग्रेसिंग, सपोज यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर जर्नी, सबसे पहले तो खुश होना चाहिए कि मेरे सारे कर्म निकल रहे हैं, प्रारब्ध कर्म, जो भी नेगेटिव मैंने किया है, इट्स कमिंग आउट. एक्चुअली होता है ऐसा कई बार. Read somewhere and I kept thinking about it. Every problem is a gift, but as you said, that makes a connection there. इट्स अ कृपा. वो समझ लीजिए कि आपको वो क्लियर होता जा रहा है. कई बार प्रॉब्लम को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है. देखिए ऐसा होता है ना कि मन की जितनी शक्ति होती है ना, आप उतना हैंडल कर पाएंगे. उससे ज़्यादा होगा तो आप टूट जाएंगे. तो मेन थिंग है तो मन को ही स्ट्रांग बनाना, और वो बिना साधना के होता नहीं है. साधना पक्की है तो कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, आप उससे पार लग ही जाएंगे. आप देखिए ना, मैं बदली ना, अभी एक मूवी है छावा, देख पता नहीं किसने देखा है कि नहीं. देखना है, मेरे भी विश लिस्ट में है. आई लव हिस्टोरिकल मूवीज. द थिंग्स दे वेंट थ्रू for establishing dharma, rajas and rishis and everybody and gurus, like what all they did. उनका जो लाइफ था, उनके कंपैरिजन में तो हम तो कुछ भी नहीं है, nothing at all. हमने कुछ डिफिकल्टी तो लाइफ में देखी ही नहीं है. काला पानी की सजा पता है क्या होती थी? नहीं पता है ना. हम यहीं पे बर्फ गिरने में ये करते हैं, शवल करने में. तो हमेशा एक अपने ऊपर अपने हायर आइडियल को रखना चाहिए कि what they went through, और जो हम we are going through, it's just minuscule thing, उसमें हम घबरा जा रहे हैं. मतलब हमारा माइंड स्ट्रांग नहीं है ना, यही बोल सकते हैं. और प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान हमारा माइंड स्ट्रांग बनाओ, मुझसे ये भी नहीं सहन होता है. वहीं पे सरेंडर आता है. जब कुछ नहीं होता ना, तो अपने इष्ट देवता के सामने बस हाथ पकड़, पैर पकड़ लो, हाथ जोड़ के बोल दो कि भगवान जी आप ही पार लगा दो, मेरे से तो नहीं हो रहा है. जब तक अर्जुन ने सरेंडर नहीं किया था, तब तक कृष्ण ने अपना टीचिंग शुरू नहीं किया था. जिस श्लोक से उसने सरेंडर कर दिया, तब कृष्ण ने शुरू कर दिया टीचिंग. तो भगवान भी तभी पकड़ते हैं हाथ जब आप सरेंडर करते हो. तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट मोमेंट है लाइफ में, या आपकी अपनी हैबिट है, नेगेटिव थिंकिंग, स्लीपलेसनेस या जो भी है,
अगर नहीं हो रहा है अपने आप से, सरेंडर कर दो। भगवान से बोलो मैं अपनी ड्यूटी करूंगी, रोज बैठूंगी 20 मिनट साधना के लिए, बट मेरे से हो नहीं रहा, आपको जो करना है कर लो अभी। देखो ना, इट्स वेरी मैजिकल, होता है। नेक्स्ट है, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, मतलब कर्म का थ्योरी समझ में आ गया। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। इसका मतलब ये नहीं है, इसमें बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं किसी को कुछ जॉब में ड्यूटी देती हूँ तो उससे भी आशा नहीं करनी चाहिए कि वो ये काम नहीं करे, है ना। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आई डोंट रिमेम्बर। आशा का मतलब यहाँ पे है कि आपके मन के सुख का या शांति का किसी और से आशा नहीं करनी चाहिए। सिंपल ये मन है कि डोंट एक्सपेक्ट एनीबडी टू मेक यू हैप्पी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी सबऑर्डिनेट को टास्क डेलीगेट किया है, उससे आशा नहीं करो। किसी ने मुझसे पूछा था कि बॉम्बे से है वो, उन्होंने पूछा था कि मेरे घर काम वाली बाई साफ करके अच्छे से जाती नहीं है, क्या मैं उसको गुस्सा नहीं करूं? मैंने बोला यू हैव डेलीगेटेड अ टास्क टू समबडी, यू कैन फायर हर आल्सो, दैट इज आल्सो अ रिस्पांसिबिलिटी इफ यू आर इन अ पोजीशन। बट दैट डजंट मीन कि आप अब बच्चों को काम देते हो, जैसे गार्बेज एम्प्टी करना है या कुछ भी करना है, अपनी लॉन्ड्री करना है, वहां पे तो स्ट्रिक्ट रहो, उसमें आशा नहीं छोड़नी है। आशा सिर्फ है कि आपके मन को कोई खुश करे, वो आशा छोड़नी है। डोंट एक्सपेक्ट दैट एनीबडी विल अंडरस्टैंड यू फुली। बोलते हैं ना लोग बहुत दुखी होके, कोई मुझे आज तक समझा नहीं। मतलब आशा वहां नहीं करनी कि अगर उसने काम ठीक साफ नहीं किया तो उसको फायर कर दो, लेकिन उसको अपने दिल पे मत लगाओ। एग्जैक्टली, सो इट्स जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ संसार में क्या बोलते हैं उसको, रोजमर्रा की जीवन जो चलाना है ना, जैसे जॉब पे हो गया, वर्क पे हो गया, यू हैव टू डेलीगेट टास्क टू पीपल, यू हैव टू एक्सपेक्ट देम टू कंप्लीट प्रॉपरली टू, बट वो आपकी सुख या दुख का कारण नहीं होना चाहिए, उस पर निर्भर नहीं करना है। ठीक है, एक एम्प्लॉई नहीं किया, उसको फायर करो, दूसरे को लाओ, अच्छे से ट्रेन करो। आई यूज्ड टू गो सो मच ऑफ स्ट्रगल विद माई क्लिनिक। सेक्रेटरी कभी अच्छे नहीं मिले तो पूरा क्लिनिक गया, है ना। और कितना गड़बड़ करके जाते थे, कुछ बच्चे होते थे, जो बच्चे होते थे सारे कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह, बहुत मुश्किल होता था। सो डू आई नॉट गेट एंग्री? यस, आई यूज्ड टू गेट एंग्री। एक लड़की का तो इतना ड्रामेटिक होता है, आई डोंट नो इफ आई टोल्ड द स्टोरी और नॉट। शी वाज जस्ट सिटिंग ऑन फेसबुक ऑल द टाइम। मैंने कैमरा भी लगाया, उसको पता है कैमरा है, स्टिल शी हैड द ऑडेसिटी टू जस्ट सिट ऑन फेसबुक, डू नथिंग, नो बिलिंग, नथिंग। मैंने एक दिन बोला टुडे इज योर लास्ट डे, कैन टेक योर पर्सन गो आउट। यू वोंट बिलीव, उसने मेरा पैर पकड़ लिया और मैं उसका पैर घसीटते हुए मैं क्लिनिक के बाहर, मैंने बोला आई एम गोइंग टू कॉल 911 इंस्टेड ऑफ नॉट लीविंग माय लेग। बोलते नहीं, आई विल नॉट डू एनीथिंग। मैंने बोला 3 महीने से यही चल रहा है तुम्हारा। आई हैव डन दैट आल्सो। यू डोंट टॉलरेट नॉनसेंस ऑफ पीपल, यू हैव टू प्ले द रोल टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड ऑल्सो मेक श्योर यू आर डूइंग द राइट स्टफ। Sometimes you have to take that उग्र रूप। अब काली और चंडी का रूप क्यों हमारे यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है? किसी भी असुर को तो छोड़ नहीं सकते ना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। नरसंहार भी कर सकते हैं चंडी का रूप लेके, याद रखो, बट कहाँ करना है, किसको करना है, कौन से अधार्मिक फोर्स को करना है, वो आपको डिसाइड करना है। एंड दोज अधार्मिक फोर्सेस कैन कम इन द फॉर्म ऑफ योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन, योर कॉलीग्स, रोड पे चलता हुआ कोई बैड ड्राइवर, इट कैन कम इन एनी फॉर्म। व्हाट विल यू डू? You can be passive, right? वो दिल्ली के बस में जो लिखा था, दिल्ली के बस सबका स्टक हो गया। सबको याद रहेगा दिल्ली की बस। दिल्ली के बस में जिसको क्रोध नहीं आता वो मूर्ख है। So that's what I thought. It's because अगर कुछ अधर्म हो रहा है तो अगर आपको क्रोध नहीं आया, that means आप मूर्ख हैं, right? So और दिल्ली में, हाँ, that's very true. That's what I'm saying. वो क्रोध को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हो, किस फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। क्रोध में जैसे कि बोलना कि मैं पति हूँ, बैठ के चाय बनाओ, क्यों नहीं चाय बन रहा मेरे लिए, वो क्रोध डिफरेंट है, वो आधार्मिक क्रोध है। बट इफ यू आर यूजिंग दैट क्रोध, दैट how you can stop the adharmic forces or somebody doing something wrong, that's a good growth, that's a good utilization of that growth. like Rosa Parks, right? She went and sat in the front and said, yeah, I'm going to, that was her growth coming out in a revolution actually. Oh yeah. That's what I'm saying. You have to utilize your anger for a shreyas. अगर आप श्रेयस के लिए यूज कर रहे हो तो दैट क्रोध इज लाइक वेल अपॉइंटेड, राइट? क्रोध एक एनर्जी है, एक इमोशनल एनर्जी है, उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, यू शुड नो। जो क्रोध को यूटिलाइज नहीं करते हैं अच्छे से, उनको क्रोध आता नहीं है कुछ ऐसा देखे, वो सच में दे आर पैसिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। मैंने शेयर किया था ना गृहस्थ पे, याद है आप लोग को वीडियो जहाँ चाइल्ड अब्यूज हुआ था, बताया था मैंने, एंड दैट लेडी डिड नॉट डू एनीथिंग। मुझे तो उससे बात करके ही क्रोध आ रहा था। हाउ कैन यू स्टे साइलेंट विद अ चाइल्ड इज गेटिंग अब्यूज्ड इन फ्रंट ऑफ यू? खून खौल जाता है ना। कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजन ही होती है। आई एम टोटली गेटिंग इट व्हाट यू आर सेइंग, दैट एंड स्पेशली वी हैव टू गेट अप एंड डू समथिंग व्हेन इट इज समथिंग सोसाइटल, लाइक बच्चे का अब्यूज हो रहा तो आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हो। लेकिन कई बार ये लगता है कि जैसे कुछ लोग हैं, समथिंग इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, इज दिस बिकॉज ऑफ
this karmas, this person has come in her life, and then she is the victim at this time, but actually she's not the victim because maybe it's because of her No, karma. that is not how you think about karma, okay? Okay. That's a wrong manifestation of your thinking, because अगर आप कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप उसको ठीक नहीं करो, तो आपका कर्म अफेक्ट हो रहा है हर सिचुएशन में. इवन दो विक्टिम एंड परपेट्रेटर का वो अपना कार्मिक अकाउंट है, समझ में आ रहा है, वो हो रहा है बिकॉज ऑफ, इफ अ वाइफ इज गेटिंग अब्यूज बिकॉज ऑफ एन अब्यूजिव हस्बैंड, विच इज देयर कार्मिक जर्नी, दैट्स फाइन. बट इफ द वाइफ इज रीचिंग आउट टू यू एंड यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, कि इनके आपस का मामला है या इनका अपना कार्मिक जर्नी है, देन यू आर द एक्चुअली परपेट्रेटर ऑल्सो. You are taking the burden of that karma. But being an outsider, we have to take an action. If that, see, If they're reaching out if they are reaching out to you, you must. Or if suppose the wife reaches out to you, जैसे यहाँ पे बोला जाता है हमको, every adult can make their own decision. For child you have to report for sure, but adult अगर abuse हो रहा है, अगर वो नहीं report कर रहा है किसी को, it's their choice. Like I have seen patients with beating marks in the back, and they come to my clinic with a back pain, but they don't say anything. A 30-year-old woman coming to my clinic with a mark of beating on the back, or I know she's getting abused or getting beaten at home. Even after asking, she's not revealing anything. It's her choice. But if she confides in somebody, me or a friend, that friend has the responsibility to take care of her or do whatever the best to the ability. मैं अब एक personal story बता दूँ. I am living with a guilt in the sense when I was very young. We went for vacation to India. मतलब बहुत पहले की बात है. I was 21 when I got married. So maybe 23, 24 की होंगी. So I went to my in-laws place, and then we have 3 floors in Delhi, and then one, because since we moved out, so they rented the one apartment. And आधी रात को मुझे आवाजें आ रही है धड़ 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 मारने की ना, और लड़की के रोने की. और मेरे को पता चल गया कि वो मार पड़ रही है, और मैं आई बीन क्राइंग, और फिर आई डिडंट नो व्हाट टू डू. आधी रात को मैं किसको, अच्छा तब तो फोन भी ऐसे नहीं होते थे, सेल फोन नहीं होते थे, घर का फोन होता था. अब किसको फोन करूं, कहाँ फोन करूं, लाइक आई वाज टू यंग टू अंडरस्टैंड ऑल दैट. लेकिन व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, आई टोल्ड माय इन-लॉज, आई सेड आप बड़े थे तो आपको जाके रोकना नहीं चाहिए था. वो बोलते इनकी तो रोज की स्टोरी है, वी टोल्ड देम टू लीव, get out of this house, but this is their everyday story. And I said, you are not doing anything. They said, बस हमने बोल दिया कि निकलो यहाँ से. मैंने कहा, but ये तो कहानी चलती रहेगी. But still today I have a guilty that how come I did not go downstairs, and how come I did not stop them. आज की डेट में शायद मैं करूँगी, लेकिन तब नहीं किया. हाँ, तो क्योंकि वो गलत था, सही था, समझ नहीं आती थी. उस समय आपकी जितनी बुद्धि थी आपने बेस्ट किया है ना, ऐसा ही बोल सकते हैं. लेकिन डेफिनेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऐसा हो रहा है तो हमको देखना. और ये अनफॉर्चुनेटली स्पेशली इन द इंडियन सोसाइटी बहुत कॉमन है. बहुत मैंने केसेस देखे हैं फैमिली अब्यूजर्स के केस में कि दे डोंट वांट टू गेट entangled into that. Okay, even if the wife approaches, they want to cut the connection from the family कि हमारा मसला नहीं है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, let them deal with it. This is unfortunate. I have seen many women raise the issue to their even mothers. मदर बोलती है तुम जानो, तुम्हारा फैमिली है, तुम्हारा ससुराल है. इसीलिए इतने, मुझे समझ में आता है इतने सारे केसेस देख के कि क्यों डाउरी केसेस में जलते थे लड़कियां, क्योंकि वो उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता था, या मर्डर कर लेते थे, अपना मतलब आत्महत्या कर लेते थे, क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स से ही सपोर्ट नहीं मिलता था. अभी भी ऐसा होता है, पेरेंट्स अपनी मदर सपोर्ट नहीं करती है. आई हैव सीन सच केसेस टू. इट्स रियली सैड. दैट्स व्हाई वो जागरूकता इम्पॉर्टेंट है कि nobody should go through abuse, no matter what they have done, like you know, जो भी उनका कार्मिक अमर, but nobody should go through the abuse, and you must support people if you know they're going through an abuse. This is मैंने ये एक पहले सत्संग में जब बेसमेंट हुआ था ना, मैंने बोला था 4 पिलर्स थे मोक्षधाम के. दिस इज वन ऑफ द पिलर्स टू सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, कल्चरल एंड देन सोशल में ये आया था कि एज अ सोसाइटी वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. हम लोग अपने प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा एल्डर अब्यूज़ देखते हैं. एक मेरे पेशेंट को कोई बच्चे नहीं थे, उसके नेफ्यू ने ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल के सामने जाके छोड़ दिया था, सब उसका पैसा लूट के. हॉस्पिटल में पड़ा था. मेरा प्रोग्राम वही था कि हॉस्पिटल से पेशेंट को लॉन्ग टर्म केयर भेजना. आई हैड टू लिटरली ओवरनाइट अरेंज ऑल द एडमिशंस एंड एवरीथिंग एंड सेंड हिम टू, बट उसके पास कपड़े नहीं थे. विंटर में एक कपड़े के साथ बाहर छोड़ दिया था कि हॉस्पिटल वाले अंदर ले लेंगे और कुछ तो इंतजाम हो जाएगा. मैंने अपने कोलीग्स को सबको ईमेल किया कि क्रिसमस के पहले की बात है, इट वाज नवंबर एंड और समथिंग. माय कोलीग्स आर सो गुड. मेरे पास इतने कपड़े आ गए विंटर के, सॉक्स. फिर मैंने जाके उसको दिया था उस पेशेंट को. ही वॉज लाइक दिस इन टीयर्स. फिर पुलिस केस उसका फाइल हुआ और जो भी एल्डर अब्यूज़ का हो रहा था. ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं.
वल्नरेबल सेक्शंस, तो वुमेन आते हैं जो अपने लिए स्पीक नहीं कर पाते, बच्चे, ओल्डर पीपल जो स्पीक नहीं कर पाते हैं. इफ़ यू कम अक्रॉस समथिंग, आई थिंक आपका तो ब्लड बॉयल होना चाहिए कुछ करने के लिए. अदरवाइज आपकी साधना ज़ीरो है, कोई फ़ायदा नहीं वो सब साधना कि नहीं मुझे नेगेटिव नहीं देखना है, मुझे कुछ नहीं करना है. उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है कि आपके अंदर अभयम आ रहा है. अभयम मतलब, अभयम इज़ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक गिवन इन भगवद गीता फॉर पर्सन हु इज सिचुएटेड इन सेल्फ. अभयम सीप करना चाहिए अंदर धीरे धीरे, जिससे आपको डर लगता था, जिस सिचुएशन से आप फेस नहीं कर पाते थे उससे आप फेस कर पा रहे हो. यू कैन टेक चार्ज ऑफ दैट. बट समटाइम ऐसा होता है ना कि यू आर नॉट इन दिस सिचुएशन, क्यों है? इंटरफेयर करने ही कर सकते. क्यों ऐसा होना नहीं चाहिए? कोई दूर मतलब जिसे हम नहीं जानते, नॉट वेरी इंटीमेट, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बराबर के टक्कर के हो, अगर आप कोई स्ट्रेंजर को तो नहीं कर रहे, शिकायत कर नहीं स्ट्रेंजर हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. स्ट्रेंजर मींस वी नो देम, नॉट लाइक उसकी अगर आपको लगता है कि दोनों की गलती है, दोनों अपना अपना कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप बेस्ट बोल सकते हो, वो अपनी अपनी साधना कर सकते हैं ना इंडिविजुअली. दे हैव टू मेक अ डिसीजन. हस्बैंड सोचता है मैं बिल्कुल वो हूँ भाई, मेरे पास ऐसे पाला था, आई एम वेरी डोमिनेटिंग, मेरा कंट्रोल होना चाहिए सबके ऊपर. ये इट्स नॉट पॉसिबल. See, you can only suggest adults. You cannot do things for them. आप कुछ नहीं कर सकते unless they come to you for a counseling or something, right? You cannot. नो वी न इनडायरेक्टली उससे ओके, बच्चों की भी अपनी चॉइस होती है. ये थोड़ा मेरे बच्चे मेरी पर्सन से शादी करेंगे, व्हाट एवर दे वांट इन देयर लाइफ. इफ माय सन लाइक्स एनी गर्ल, आई एम एग्री, ओके, आई एम प्लीज, इफ दे आर हैप्पी आई एम हैप्पी. ये थोड़ा कि मेरी कास्ट में होगी, मैं ही कराऊंगा जो मैं देखूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल. So you can't change people's perception, can you? Right? No. या They'll suffer because of their rigidity, right? Yeah. Happy if my son go outside any caste. If he is happy, I'm happy. If they are compatibility or they are. ये भी I'm सोचना happy. छोड़ो ना, क्यों सोच रहे हो ये सब? नहीं, I'm happy. They say, oh, you are going in the wrong direction. You are. Doesn't matter किससे शादी करे नहीं करे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क, क्यों इतना सोचना उसके बारे में? नहीं, मैं उस पर डिस्कशन आया था, वो कह रहा था कि मेरे बच्चे मेरे हिसाब से चलने चाहिए. बोलने दीजिए उनको जो बोलना है ना. That's okay. उनको ऐसे लोगों को सजेशन नहीं देना चाहिए. That's why I'm asking. कई बार आप बीच में आके आप पिस जाते हैं, इसलिए just कभी-कभी ये भी हो जाता है. This is not an abusive situation. This is like different. समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? मैं जो बात कर रही हूँ अधर्म जहाँ हो रहा है उस पर बात कर रही उनमें हूँ. वो भी होती है, मारपिटाई भी होती है. ऑब्वियसली कोई अब्यूजिव सिचुएशन में होता है, तो अगर कोई आप उसको सहारा दे सकते हो तो क्या बोलना है कि आप साधना करो. आप कोई ओपिनियन नहीं देना है. और if they ask for opinion, No, it's no. आपसे सलाह करनी है, नहीं, ना बिल्कुल तो- नहीं, हाँ. never. What Just- do you want? Divorce जाओ करो अपना. अच्छा सुनो, ऐसा करना है, उसमें ईगो बूस्ट करने वाला काम नहीं करना है. अगर वो बोले कि तुम मुझे जस्टिफाई करो, मैंने जो किया सही है, नहीं बोले तुमको जो अच्छा करता है करो, तुम 20 मिनट कपालभाति शुरू कर दो. If you do 20 minutes कपालभाति for 1 month, then come and talk to me. आप उनका रीडायरेक्ट करो एनर्जी. वो एनर्जी जिससे वो विक्टिम फील करें, वो भी एक एनर्जी है. और दे हैव टू मेक अ डिसीजन टू कम आउट, क्योंकि 20-20 साल के मैरिजेस में लोग बाहर नहीं आ सकते. 9 out of 10 पीपल बाहर नहीं आ सकते. ओके, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो इतना स्ट्रांग, एक तो सोसाइटल है कि हमको नहीं ऐसे रहना है अकेले रह के या जो भी है, और उसके लिए प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट है सेपरेशन का एंड ऑल दोस थिंग्स. झंझट है ना नॉर्मल लाइफ से. बहुत काम करना पड़ता है, लॉयर के पास जाओ, ये करो वो करो. सो आई वुड सजेस्ट इफ समबडी लाइक दैट इज कमिंग टू यू, redirect their energy into the sadhana and tell them not to react, but also create a physical boundary कि physically कोई hit कर रहा है तो मैं तो बोलती हूँ 911 फोन कर दो. I will never tolerate any physical कि तुम physically जाओ इसके through. That is I'm sure. Nobody should be allowed to touch you and abuse you physically. उसमें तो सीधा पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तुम अपना भी कर्म बचाओगे, उसका भी कर्म बचाओगे जो परपेट्रेटर है. समझ में आ रहा है? वो भी तो गलत कर्म कर रहा है ना. तो एक बार पुलिस, एक मेरी फ्रेंड है, शी इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर, उसके पेरेंट्स का ऐसे ही चलता था, फादर यूज्ड टू अब्यूज एंड एवरीथिंग. वन डे शी जस्ट कॉल्ड 911. मदर डिडंट कॉल, द डॉटर कॉल्ड. ओके, बस उसके बाद से उसके फादर एकदम भीगी बिल्ली बन गया. बहुत अच्छा हो गया, मतलब ही न्यू हिज लिमिटेशन. तो कई बार दुष्ट को जगह पे रखने के लिए आपको कुछ कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, उसमें पैसिव नहीं रहना. सो इफ दैट लेडी, यू ओनली अलाउ थिंग्स, समबडी टू पेनिट्रेट यू सो डीपली एंड हिट यू, यू शुड नेवर अलाउ दैट फिजिकल टॉर्चर. इमोशनल अब्यूज तो आदमी हैंडल कर सकता है इन द सेंस कि यू कैन रीडायरेक्ट, बट फिजिकल अब्यूज यू मस्ट टेक एक्शन. जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के. भगवान को सही लाइन आ गई. जिंदगी की डोर सौंप दीनानाथ के, मतलब दीन के नाथ, दीन मतलब दीन दुखी,
दयनीय स्थिति में है, जो अब्यूजिव सिचुएशन आप बोल रहे हैं, उसको दीनानाथ के हाथ सौंप दो। मतलब ये नहीं है कि पैसिव बन जाओ, मन से सरेंडर करो, बाहर से एक्शन लो। मन से सरेंडर करो, बाहर से एक्शन लो। महलों में राखे फिर कहीं भी उसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो। सो एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंस, वेदर यू चूज टू स्टे विद योर अब्यूजिव पार्टनर और यू गो अवे फ्रॉम योर अब्यूजिव पार्टनर, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस, यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इट। बहुत वुमेन इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं रहता। बहुत लोग इसलिए नहीं जाती हैं, सोशल बैकिंग नहीं रहता। तो आप स्टे कर रहे हो उस अब्यूजिव रिलेशनशिप में, मतलब आपका स्वार्थ है उसमें, ये बात याद रखो। यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गोइंग अवे। But sometimes you're scared too, right? Scared of what? How you go out in the society, live alone by yourself. That's Many a- people so have that is- fear, right? So that is a fear, ना? हाँ, That is, वो So- भी स्वार्थ है ना? हाँ, वो तो है ही. हाँ, स्वार्थ है। Because आज जैसे आपने कहा, हाँ. right? Many parents also don't support their daughters, and these issues are happening. So that's what I'm saying. अगर आप वो लेने को रेडी हो, वो ट्रबल है ना वो, Of course. तो वो झंझट नहीं लेना चाहते ना। समझ में आ रहा है? वो भी स्वार्थ है ना, मुझे मिल रहा है कुछ इससे यहाँ रह के, मतलब मुझे सेफ फूड शेल्टर क्लोथिंग मिल रहा है। It's a conditional. That too I understand, but like, how does a person come out of it, right? I think because there's a lot of situations where you don't leave because of children. Children, You have exactly. young kids or whatever, right? So Or you don't Yeah. find yourself capable enough to, exactly. fight the world outside. क्योंकि Yes. कभी-कभी ऐसा लगता है ना, बाहर के beast will be more worse than what I have inside, right? तो Yeah. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो अच्छा है बुरा है, मैं हम्म, बोल रही हूँ जो है हम्म। वो आपको एक्सेप्ट करना है कि आपका स्वार्थ है इसमें। भले आप बच्चों के लिए रह रहे हो या अपने सेफ्टी के लिए रह रहे हो, आपका स्वार्थ है। वो स्व अर्थ समझना है। मैं ये डिसीजन नहीं कर रही हूँ या मॉरली मैं नहीं किसी को ये कर रही हूँ, समझ में आ रहा है? Right, right. मैं बस ये बोल रही हूँ उसमें आपका स्वार्थ है, इसलिए आप वहां हो, ठीक है? Get it. वो एक्सेप्ट करना है और बोलना है कि अगर तुम इधर से नहीं निकलना चाहते या नहीं निकलना तो अपनी साधना पे वर्क करो। फिर अगर कुछ नहीं करना चाहते, दिस इज द बेस्ट यू कैन डू, उसमें सरेंडर करो साधना में अपने। धन्यवाद, निर्विवाद, राम राम कहिए, तो उसमें फिर निर्विवाद हो जाना है, फिर विवाद नहीं करना है मैं क्यों रुकी। आई नो आई मेड दिस डिसीजन बेस्ड ऑन इट्स माई चॉइस टू स्टे बैक इवन दो नो मैटर व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। उसमें फिर विवाद नहीं करते रहना है, उसमें फिर टॉर्चर नहीं सहना है, फिर जो बेस्ट है करो। और जैसे जीवन में कोई भी सिचुएशन आए, जैसे बोले ना साधना में प्रोग्रेस करते हैं तो डिफिकल्ट सिचुएशन आता है, उसमें भी धन्यवाद करना है, उसमें भी निर्विवाद रहना है। क्वेश्चन नहीं करना है वाई मी, क्योंकि अच्छा आता है तो हम क्वेश्चन तो नहीं करते वाई मी, अच्छा कुछ आता है तो क्वेश्चन नहीं करते, तो बुरा आया तो क्यों क्वेश्चन करना है, उसमें बेस्ट करना है। हाउ डू आई नेविगेट दिस। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, इसमें वही है डेलीगेशन में आशा रखनी है, बट लोगों को अपने मन को प्रसन्न करने में आशा नहीं रखनी है। और याद रखिए, द्रौपदी ने सबको बुलाया था, अंत में भगवान ने ही मदद की थी। तो अगर आप शुरू से ही भगवान में समर्पण करेंगे तो किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई ह्यूमन बीइंग आपको कभी भी 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। नोबडी, नो ह्यूमन बीइंग, अनलेस दैट पर्सन इज अ साधु और रियलाइज गुरु और समथिंग। Nobody can give you 100% because everybody is only seeking from others. They don't have enough. बोलते हैं ना, एक भीगा हुआ पेड़ किसी को छांव नहीं दे सकता। सभी भीगे हुए हैं, सब में कुछ ना कुछ विकार है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है ना लाइफ में, because nobody is that योगी। दूसरे से आशा करने छोड़ देनी चाहिए कि दिस पर्सन विल बिहेव अकॉर्डिंग टू मी और गिव मी फुल 100% सेटिस्फैक्शन। इवन योर चिल्ड्रन, नाता एक राम जी से दूजा, बस यही सोच लीजिए कि जो भी मेरे इसमें आ रहा है ना, दे आर coming, they're divine energy, they're coming in my life for my growth. What I can learn from this relationship and grow in my journey, वही सोचना है हमेशा, क्योंकि सबका एक पर्पस होता है लाइफ में। पॉजिटिव पर्सन, नेगेटिव पर्सन, सबसे आप सीख सकते हैं। कई बार बोलते हैं ना कि अपने फादर से लोग सिगरेट पीना सीख लेते हैं, या फिर उसके ऑपोजिट भी चले जाते हैं कि बिल्कुल कभी नहीं पियेंगे क्योंकि उससे उनको इतनी खांसी हो रही थी। तो आप सबसे हर टाइप का आपको जो लेना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा, वो ले लेंगे। NI, नेचुरल इंटेलिजेंस है हमारे अंदर। एक्सट्रैक्ट थिंग्स व्हाट वी कैन फ्रॉम आवर सराउंडिंग। तो जो आपको आपके ग्रोथ के लिए है वो आप ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। काम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए। सीताराम 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 कहिए। डिजायर्स टू द फॉर्म ऑफ क्रेविंग नहीं होना चाहिए कभी भी। राग जिसको बोलते हैं संस्कृत में, राग और द्वेष दो टर्म आता है भगवत गीता में। लूजली इट्स ट्रांसलेटेड इनटू लाइक्स एंड डिसलाइक, बट इट्स नॉट सिंपल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। राग इज मोर लाइक क्रेविंग और अटैचमेंट टू पर्टिकुलर थिंग कि अरे 4 बजे कॉफी नहीं मिली तो मेरा सर दर्द होने लगेगा। द्वेष इज लाइक, ओ माय गॉड, आई कांट टॉलरेट दिस पर्सन, whenever he comes in the group meeting I have to go away. I'll attend virtually. उसको बोलते हैं राग और द्वेष। एक्सट्रीम लाइकिंग और क्रेविंग फॉर अ पर्टिकुलर थिंग या एक्सट्रीम डिसलाइक टू पर्टिकुलर थिंग दैट यू आर रनिंग अवे फ्रॉम इट। वो डुअलिटी में रहना नहीं है। तो जितनी आप साधना करते रहेंगे आप वो डुअलिटी से बाहर आते रहेंगे। तो यही है, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पीजिए। सीताराम 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 कहिए। तो अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू योर साधना, कि आप कितनी अच्छे से साधना करते हैं अपनी,
वो सब का फल है कर्म योग। आपकी बुद्धि कितनी खुलती है, कर्म योग इज ऑल्सो कॉल्ड बुद्धि योग। कोई क्वेश्चन? मन को पहले शांत करिए, मौन में रहना सीखिए एवरी डे। Forced. जब तक डॉक्टर नहीं कहते तब तक काम मत करते। Forced. Born. Applies. 10 मिनट्स से अपने आप से बैठिए, जस्ट विदाउट एनीथिंग, शांति में बैठना है, लाइक विदाउट एकदम कोई भी थॉट्स नहीं। थॉट मतलब थॉट्स को ऑब्जर्व करिए, थॉट्स को ऑब्जर्व करिए लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, बट डोंट फॉलो द थॉट्स। और साइलेंस में बैठना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट आ रहा है थॉट्स, आ रहा है 50,000 थॉट आ जाएगा 1 घंटे में, बट व्हेन मोर एंड मोर, सो मन इज लाइक अ टॉडलर, मोर यू बिकम अवेयर मोर इट बिकम्स कॉन्शियस। जैसे एक छोटे बच्चा कोई बदमाशी करे, उसको देखते रहे तो कॉन्शियस हो जाएगा ना कि माँ मुझे देख रही है, तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाएगा। तो मन वैसे ही है। तो मन को कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मन भागेगा ही, मन का वो नेचर है। मन तभी भागना बंद होता है जब आप डीप स्लीप में होते हैं या कोमा में होते हैं। तो मन का नेचर है भागना। मन पानी की तरह है, वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेगा। आज कोई नहीं देख रहा है आपको, सड़क पे कोई नहीं है, तो आप रेड लाइट क्रॉस कर सकते हैं ना कोई नहीं देख तो मन का नेचर है पाश्विक, पशुता। पशुता हमारे मन का नेचर है। वो पशु को ह्यूमन कैसे बनाना है वो साधना हमको सिखा, फिर वो धीरे धीरे डिवाइन कैसे बनाना है वो भी साधना सिखा। बाय नेचर वी आर एनिमल्स, माइंड इज एन एनिमल। वो हमेशा गलत ही करना सोचेगा। इंडिया में कुछ काम नहीं हो रहा है, थोड़ा रिश्वत दे दो, काम हो जाएगा। मन हमेशा वैसे ही सोचता है ना कि कैसे कट मार के कर लें, क्या इजीली कर लें। तो मन को ट्रेन करना है। सो साधना इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड। इट स्टार्ट्स विथ यू। क्या आज की सभा समाप्त करें? आप सबकी साधना भूखी है। खाना मांग रही है। Okay, we're signing out. Thank you.